आप सभी का स्वागत है आज के बिजनेस अकाउंटिंग सेशन में। और जैसा कि आज आपका क्लास का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो आज हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की क्लास होने वाली है और इसलिए इनके लिए हमारे साथ सी बलदेवराज सर ने हमको ज्वाइन किया है आज। और जैसे कि आज की रीडिंग पर्सन मिस शोभा सिंह मैम होंगी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है हमारी सोसाइटी की। और इसी के साथ मैं इन्वाइट करना चाहूंगा राधा देव जी को फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस रिसोर्स पर्सन एंड ट्रेनिंग पर्सन एज वेल। ओवर टू यू राधा जी। Hello, good evening, everyone. It is my pleasure to introduce our esteemed speaker, CA Baldev Raj. He is a practicing chartered accountant with over 3 decades of experience, specializing in direct tax and leads Baldev Raj and Company. He has been actively participated with ICAI contributing to key committees on fiscal laws and taxation and is a regular speaker at professional forums. He also served as president of BVSS and is an author on TDS and income tax provisions. Let us warmly welcome CA Baldev Raj sir. Thank you. And Sobha Bhashin as entrepreneur and educator with an experience of 32 years in the field of education. She worked in various public schools in Delhi before she joined Ryan International School as a biology teacher, from where she took her VRS. During her school tenure, she was awarded for her good performance a number of times. She also assist, assisted in Atal Tinkering Lab, which is a mission set up by Niti Aayog for transforming the innovation and entrepreneurship ecosystem in the country. She is trained classical dancer Odissi and had been a sports person with many awards under her belt. She is also an avid sitar player. She has she has been an integral part of Saksham Bharati right since its inception. Thank you, and it's over to you, Abhishek ji. थैंक यू राधा फॉर द इंट्रोडक्शन। और आगे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे क्लास स्टार्ट करने के लिए। पर हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक बार अनम्यूट करना सकती हूँ। May I start? यस सर, यस सर। Thank you, Abhishek ji and Radha ji, for introduction. This is my privilege to have another class in the Saksham Rozgar Society, and topic has been assigned to me is the introduction of the income tax returns form. Over the years, you have must heard there is a change in the Income Tax Act. Earlier has been substituted by another new act 2025, and that has been effective from the 1st April 2026. And the new rules and also been redesigned and reformed, and that is be also applicable from the 1st for 2026. But our concern is the preparation of income tax return. That return is relating to the financial year 2025-26, which is assessment year 26-27. But in that case, our own law is applicable in our case. So we should very clear on that part, which we are discussing today is relating to the return, which accounts has already been prepared for the financial year 2025 2026, 25-26. So we are restricting to our discussion on the last act, which is the last year of that, the old act, 1961, which is applicable last time to the assessment year 26-27. Next time, when it will come for the next year, we will discuss the new law, new first act and new rules. Now comes to the today discussion. First is the what is the meaning of income tax? The general meaning is as understood from the language itself, words itself.
is a tax on income. And income on which tax is being paying, that is the income tax, and the law which is governing the income, tax on income, is known as Income Tax Act. And these act as earlier, which are we talking about 1961, and thereafter in subsequent year it will be a new act 2025. सर Why the income tax इंटरप्ट is करने के being लिए सर charged? माफी That चाहूंगा is to सर। be, sorry, सर थोड़ा सा अगर हिंदी में बोल पाते हमारी ऑडियंस, जैसे कि पार्टिसिपेंट हिंदी बेट से ज्यादा समझ पाते हैं आप। सॉरी, हिंदी ज्यादा बोल पाई अच्छा रहेगा। यस सर अगर थोड़ा हिंदी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो आपने इंग्लिश शुरू किया तो मैं सोचा इंग्लिश में बात करना है। तो समझने की बात है कि इनकम टैक्स का एक्ट है जो टैक्स ऑन इनकम, वो बात हमने करी कि इनकम के जो इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाता है वो इनकम टैक्स कहलाता है। और जो एक्ट है उसको गवर्न कर रहा है वो इनकम टैक्स एक्ट है। जिसको कंट्रोल रूल्स और हाउ उसको मैनेज कर रहा है उसका एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि ये इनकम टैक्स क्यों चार्ज करते हैं, इनकम टैक्स की आवश्यकता क्या है, क्या इनकम टैक्स जरूरी है। तो ये देखिए, सरकार चल रही है, सरकार के सारे खर्चे हैं, हमारा कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, स्टेट का डेवलपमेंट डेवलपमेंट होता है, स्टेट का डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन है, मेडिकल एड्स हैं, फैसिलिटीज हैं। इन सबको खर्च करने के लिए एक पैसा चाहिए। पैसा खर्च करने के लिए एक वन ऑफ द सोर्स गवर्नमेंट के पास है टैक्सेस का। इसमें टैक्स है जो इसके लिए ये टैक्सेस चार्ज करते हैं। अब इसमें टैक्स भी कई तरह के हैं, दो तरह के टैक्स हैं। टोटल टैक्सेस को अगर हम बांटते हैं कि टैक्सेस कितने तरह के हैं, तो हमारे देश में जो टैक्सेस को है बांटा गया है वो दो पार्ट्स में बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम टैक्स जो है पार्ट है वो डायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो अब ये क्वेश्चन आता है, ये पैसा गवर्नमेंट को कैसे मिलता है। थोड़ा जनरल जनरल समझने वाली बात है, जस्ट अवेयरनेस के लिए। ज्यादा इससे हमें रिटर्न के लिए कोई यूज नहीं है, बट पता होना चाहिए। जो इनकम टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट, वो किसके पास जाता है, स्टेट के पास या सेंट्रल के पास। टैक्स तो कलेक्ट सेंट्रल करती है, क्या स्टेट को भी कुछ पैसा मिलता है। तो ये विषय है, सेंट्रल के पास भी टैक्स जाता है और स्टेट के पास भी शेयरिंग होता है, वो मेथड डिफाइंड है। लेकिन कुछ टैक्स जो है सिर्फ स्टेट के पास ही रह जाता है, और कुछ टैक्स सिर्फ, सॉरी, सिर्फ टैक्स सेंट्रल के पास रहता है। ये एक्ट हमें पावर गवर्नमेंट को कहाँ से मिली और उसको चार्ज इनकम टैक्स किस तरह कर सकते हैं, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल है, एक आइटम नंबर शेड्यूल है, सेवंथ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट लिस्ट है, उसके अंदर 82 नंबर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देती है कि ये कलेक्शन कर सकते हैं टैक्सेस का। बट उसको एग्रीकल्चर इनकम को एक्सक्लूड किया हुआ है। मींस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। फिर इनकम के अलावा उन्होंने राइट दिया आइटम नंबर 86 में कि ये टैक्स जो कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल वैल्यू पे भी कर सकते हैं। एक तो इनकम होती है, एक कैपिटल होती है, क्या कैपिटल पे भी टैक्स हो सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सेंट्रल को दिया गया कि वो इनकम पे और कैपिटल के दोनों पे कर सकता है। बट एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना इनकम पे ना कैपिटल एसेट पे कलेक्ट कर सकता है सेंट्रल। ये राइट दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं और कैपिटल एसेट के ऊपर भी, वैल्यू पे भी टैक्स कैलकुलेट कर सकती है। तो इससे हमें ये समझ आ जाता है कि सेंट्रल के पास और स्टेट के पास कौन कौन से राइट हैं और कौन टैक्स कैलकुलेट करता है। इसीलिए जब आप देखते हो तो रो हमेशा समझ में आता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स का राइट जो है ऑन एग्रीकल्चर स्टेट के पास है, सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है। और इनकम टैक्स एक्ट जो है जिसको गवर्न करता है वो सेंट्रल के पास है, सेंट्रल सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से चलती को कलेक्ट कर सकती है। अब स्टेट और सेंटर की बात हमने करी थी, दोनों को मिलता है क्या, एक को मिलता है। सरचार्ज और कॉर्पोरेट टैक्सेस होता है, जो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है उसका कोई नो शेयर टू स्टेट को नहीं देता, ये सारा पैसा सेंट्रल के पास रहता है, बाकी स्टेट डिवाइड करती है। अब आता है बात इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के कौन हम किसको पे करना है और इसके अंदर क्या लॉ है, इसको आज समझेंगे। जिससे थोड़ा सा बेसिक समझेंगे फिर रिटर्न बनाना आसान हो जाएगा। जो भी इनकम है उसको जो टैक्स देता है
जो भी इनकम टैक्स में टैक्स जिसको देना है या जो दे रहा है या जिसको देना चाहिए, वो सारे के सारे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसको समझते हैं। उसको हम एसएससी कहते हैं। एसएससी जो मतलब वो पर्सन जिसको इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से रिटर्न को फाइल करना है, या जिसको रिक्वायर्ड है कि रिटर्न फाइल करनी चाहिए, या रिटर्न फाइल कर रहा है, वो सारे एसएससी कहलाते हैं। अब एसएससी में कौन कौन कवर होता है ये समझने की बात है। एसएससी वो है जो पर्सन है, पर्सन को डिफाइन किया इनकम में। एक इंडिविजुअल जैसे आप और हम हैं, हम इंडिविजुअल कहलाते हैं, पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन जैसे राम है, श्याम है, मैं हूँ, संजय जी हैं, राधा जी हैं, अभिषेक जी हैं, ये सारे इंडिविजुअल कहलाते हैं जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। दूसरा पर्सन आता है, एसएससी हो सकता है, जो पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड होता है, एचयूएफ होता है। जितने भी हिंदू हैं हम लोग, इनका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो भी एक एंटिटी है जिसको इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है, उसको एक पर्सन मानता है। और टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग एचयूएफ एक रहती है जिसमें एक एसएससी होता है, उसकी रिटर्न हम फाइल करते रहते हैं। अब एचयूएफ में क्या प्योर हिंदू हैं, सिख्स भी आ सकते हैं, जैन्स भी आ सकते हैं, ये सभी हिंदू लॉ को गवर्न करते हैं, ये तीनों कवर होते हैं। आप हिंदू डिवाइडेड फैमिली बनती कैसे है इसका आज विषय नहीं है, बट इट इज ऑटोमेटिकली जब आप हिंदू फैमिलीज में हैं और हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चा है आपका, जो बच्चा हिंदू हैं और आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो वह फैमिली अपने आप क्रिएटेड है, जनरल क्रिएशन है, इसको कोई फॉर्मेट नहीं है, बनाना नहीं पड़ता है। तो जो ऑलरेडी हिंदूज हैं और फैमिली है, वो अपनी रिटर्न अलग से बना सकती है, फाइल कर सकती है, अगर उनकी इनकम है तो। फिर आता है थर्ड पर्सन की डेफिनेशन में, इंडिविजुअल एचयूएफ आ गया, कंपनी। कंपनी में कॉर्पोरेट है, जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है, या 1956 में पुरानी कंपनियां जो रजिस्टर हैं वो सारी कंपनीज हैं, वो कंपनी की रिटर्न एज ए कंपनी के हिसाब से फाइल होती है, उसका अलग प्रोविजन दिया हुआ है। कुछ कंपनीज हैं जो फॉरेन कंपनीज को भी रिटर्न फाइल करनी होती है, तो कंपनी इंडियन कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनीज भी हैं जो इंडिया में आती हैं, वो भी कवर होती हैं इसके अंदर। फोर्थ हमारा आता है इंडिविजुअल के केस में फर्म। फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, इसको पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। पार्टनरशिप फर्म भी होती है, लिस्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप भी होती है, इसमें एलएलपी कहते हैं। ये दोनों तरह की फर्म्स को कहते हैं, रजिस्टर भी हो सकती है, अनरजिस्टर भी हो सकती है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर भी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के यहाँ, और अनरजिस्टर भी हो सकती है, बट इनकम टैक्स के हिसाब से दोनों ही फर्म कहलाती है, चाहे रजिस्टर है चाहे अनरजिस्टर्ड है। और एलएलपी भी रजिस्टर्ड फॉर्म है, जिसको कार कंपनी लॉ अफेयर्स के अंदर रजिस्टर कराना होता है, उसकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। इसके अलावा होते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट हुए हों या ना हो। जैसे आपने सुना होगा, क्लब बना लेते हैं, अ, अपना वेलफेयर एसोसिएशंस बना लेते हैं हम लोग, जहाँ रहते हैं हम लोग वहाँ की वेलफेयर एसोसिएशंस हैं। ये सारी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो मिल के लोग हम काम करते हैं, क्लब में मिल के काम करना चाहते हैं, वो सारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाते हैं, और उनकी रिटर्न भी कि इनकम टैक्स के हिसाब से उसको अलग पर्सन मानते हैं। फिर लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे कुछ लोकल अथॉरिटी एग्जम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है, जैसे एमसीडी है, एनडीएमसी है, दे आर द लोकल अथॉरिटीज हैं। डीडीए है, जेडीए है, इस तरह की कई भी अथॉरिटीज हैं, वो भी है। टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल की बात नहीं कर रहे, वो कवर्ड है, वो लोकल अथॉरिटीज में आती हैं। और कुछ और भी एसोसिएशंस कुछ हो सकती हैं, जिनको एवरी जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जो रजिस्टर्ड है कहीं, वो उसको एज ए रजिस्टर्ड है, जैसे सोसाइटीज हैं, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट है, वो इन सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहला के उनको भी पर्सन की डेफिनेशन में रखा गया है। तो ये 7 तरह की एंटिटीज हैं जिनको पर्सन की डेफिनेशन में कवर किया गया है। इन सातों को ही अगर इनकम टैक्स के एसएससी की डेफिनेशन में कवर्ड होती हैं, और इन्हीं को ही रिटर्न फाइल करनी होती है। कि जो इन कैटेगरी के आपको जब भी देखना है, तो सबसे पहले देखना है वो किस कैटेगरी का पर्सन है, जिससे उसकी रिटर्न फाइल करनी है। क्योंकि उसी कैटेगरी के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से ही आपको देखना होता है कि उसको कोई एडवांटेज है, या उसको कोई बेनिफिट है, या उसका प्रोसेस है, जो फाइलिंग का रिटर्न है, जो टैक्स रेट है, वो अलग अलग हो सकता है पर्सन के हिसाब से। इसको हम ये अभी समझेंगे आगे, बट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये समझना कि हम जब रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो हम किसकी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो किसकी रिटर्न है। तो इन 7 कैटेगरी वाले पर्सन की कौन सा पर्सन है जिसकी मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, इसका लिए बहुत क्लियरली पता होना चाहिए हमको। इसके बाद आता है इनकम, कौन कौन सी इनकम है जिसकी रिटर्न हम फाइल करते हैं। इनकम की कैटेगरीज हैं, इनकम को किस भागों में बांटा गया है, कि टोटल इनकम तो कई तरह की हो सकती है, तो इनकम टैक्स एक्ट इसको भागों में किस तरह बांटा है, उसके भाग इस तरह हैं। पहला है उसका हेड जो है जिसको भाग बोलते हैं, पर्टिकुलर हेड है जैसे सैलरी का हेड है। अगर सैलरी है, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है, जहां कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी एम्प्लॉयर के अंडर, जो उसको पैसा मिलता है, जो उसको रेमुनेशन मिलती है, या जो उसको बेनिफिट मिलते हैं, उसकी इनकम जो है वो टैक्स होती है सैलरी के हेड के अंदर। उसका जो सैलरी के हिसाब से उसके जो प्रावधान है, उसके जो प्रोविजन है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और उसको सैलरी हेड में हम उसको रिटर्न में दिखाते हैं। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये घर, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है घर है, जो भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं जो बिजनेस के लिए नहीं यूज हो रही, वो सारी उनकी इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी के लिए उसकी इनकम हेड में होती है, टैक्स होती है। जैसे आपका कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, जब वो किराए पे दी जाती है तो उसकी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में असेस्ड होती है। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल है कंपल्सरीली, चाहे वो बिजनेस है या अदरवाइज ही, तो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स होनी है, ये ध्यान रखना है। चाहे वो कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, उनके अंडर हो प्रॉपर्टीज हैं, बट है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उसकी टैक्सबिलिटी अगर रेंट आ रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स होना है। फिर तीसरा भाग है जो डिवाइड किया गया, पहला सैलरी का था जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप था। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था जो हमारी प्रॉपर्टी किराए पे है, जा किराए वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है उसकी इनकम आ गई। तो थर्ड पार्ट जो है इनकम का, जिसके हेड है इनकम, वो बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर की बात करते हैं। ये बिजनेस और प्रोफेशन दो अलग अलग होते हैं बट इसका हेड एक ही है। बिजनेस की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा, जितने ही अकाउंटिंग आप जहाँ करते भी होंगे, जो अकाउंटिंग करने की अभी आपने लर्निंग करी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बिजनेस अकाउंट, डेली अकाउंट तो आपने बिजनेस के ही बनाने होते हैं ज्यादा। तो बिजनेस जैसे है, कोई शॉपकीपर है छोटा सा, या रेडी वाला भी है, धोबी है, या बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे अपना रिलायंस की कंपनी है या टाटा की कंपनीज हैं, ये सारी जो कमाई कर रही है बिजनेस इनकम भी है। तो मतलब छोटे से छोटे से बड़े तक, अगर वो बिजनेस एक्टिविटीज में है तो उसकी इनकम एक ही हेड में टैक्स होगी, बिजनेस और गेन फ्रॉम बिजनेस। दूसरा हेड होता है प्रोफेशनल। जैसे हम लोग प्रोफेशनल हैं, जैसे डॉक्टर आपने देखे होंगे, डॉक्टर की जो इनकम होती है, जो रेगुलर डॉक्टर सर्विस में नहीं है, प्रोफेशन में है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स में बना के बैठे काम कर रहे हैं, वो सब प्रोफेशनल कहलाते हैं। लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, इवन आर्किटेक्ट्स हैं। ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे प्लेयर खेलते हैं क्रिकेटर, आईपीएल आप देख रहे होंगे, आईपीएल वाले प्लेयर्स की अगर इनकम बनाते हैं तो प्रोफेशनल है, दे आर प्लेइंग एज ए प्रोफेशनल, तो उनकी इनकम प्रोफेशन से होती है। तो हेड्स ऑफ इनकम में हमने 3 हेड देख लिया, अब चौथा हेड है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन का मतलब होता है जो हमने गेन प्रॉफिट कमाया कैपिटल के ऊपर, कैपिटल मतलब कैपिटल एसेट के ऊपर। इनकम टैक्स के हिसाब से इसको कैपिटल एसेट कहते हैं। कैपिटल एसेट कौन सी हो सकती है, कुछ भी, जैसे आपने घर है, कोई घर को बेचते हैं, दुकान को बेचते हैं, कोई खाली जमीन को बेचते हैं, या ज्वेलरी को बेचते हैं, ये सारी कैपिटल एसेट कहलाती हैं। जब ये बेचते हैं तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाते हैं, मीन जो आपने कॉस्ट खर्ची और जो आपको पैसा मिला, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। उसका कैपिटल गेन के टैक्स कैसे कटने हैं वो लगता है, बट कैपिटल एसेट जब बिकती है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन होता है, तो उसकी इनकम कैपिटल एसेट गेन के अंदर आती है। फोर्थ, जो फिफ्थ पार्ट है जिसको हमने अभी हेड मांगा, तो फिफ्थ हेड है, बस ये लास्ट है, रेजिडुअल इनकम का। जो इनकम है, मतलब इनकम की डेफिनेशन में आ रही है और उन चारों पार्ट्स में ऊपर नहीं आ रही, ना सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, ना कैपिटल गेन है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। लेकिन कुछ हेड ऑफ इनकम ऐसे हैं जो फिक्स हैं कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही आते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन एफडीआर है आपकी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। डिविडेंड इनकम है, वो अदर सोर्स है।
या फैमिली पेंशन आ रही है, वो अदर सोर्स है। ये सारे अदर सोर्स में आते हैं। ये 5 हेड हैं। जब भी आप इनकम देखेंगे, तो आप इनकम को पहले हमने देखा था किस पर्सन के हाथ में, वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, वो देखा जाए। फिर उसकी इनकम कौन से हेड से है। ये 5 हेड है। जैसे हमने वो देखे थे 7 कैटेगरीज है जो पर्सन की, उनकी रिटर्न जाननी है। ये 5 हेड है जिसकी इनकम को हमने रिटर्न में फाइल करना है। ये 5 तरह की इनकम में डिवाइड करना है, जो भी इनकम है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कौन सी इनकम, पहले हमने समझा किसको टैक्स देना है, किसको रिटर्न फाइल करनी है, पर्सन कौन है। फिर कौन कौन सी इनकम है, किस किस, अब वो टैक्स किस इनकम किस साल में देना है, ये क्वेश्चन आता है। किस साल की इनकम और किस साल में देना है। जैसे हमने शुरू में बात करी थी, 1/4/25 से लेके 31/3/26 के इनकम की बात हम कर रहे हैं। तो इसकी टैक्स ईयर कौन सा होगा और इनकम किस साल की होगी, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो एक कंसेप्ट है इनकम टैक्स में, प्रीवियस ईयर। जब आप रिटर्न भरते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर भी आता है, असेसमेंट ईयर भी आता है। प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स होती है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है, वो इमीडिएट प्रोसीडिंग टू असेसमेंट ईयर। जैसे अब हमारी अभी बात करी 1/4/25 से लेके 31/3/26 तक, ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर। और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2026-27। तो फाइनेंशियल ईयर का इमीडिएट प्रोसीडिंग असेसमेंट ईयर हो गया। प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 25-26, असेसमेंट ईयर हो गया 26-27। इसके लिए एक एक्सेप्शन भी है। जब नया बिजनेस शुरू करते हैं तो पूरे साल बिजनेस तो होगा नहीं, तो पूरे साल इनकम भी नहीं होगी। तो इनकम जब स्टार्ट किया से लेके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मीन्स 31 मार्च 2026, मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर 2025 में, और उसकी रिटर्न अगर आप बना रहे हैं, तो उसका प्रीवियस ईयर जो है वो 25-26 ही रहेगा, लेकिन वो पीरियड 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का होगा। इसमें ये समझने वाली बात है। तो प्रीवियस ईयर को समझना जरूरी है, क्योंकि उसकी इनकम टैक्स होती है असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर 12 मंथ का पीरियड है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो जो हम बात कर रहे हैं 25-26 का, 1 अप्रैल से 26 से शुरू होगा। जो 12 महीने का होगा उसको 26-27 असेसमेंट ईयर कहेंगे। एग्जाम्पल है हमारा इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। 25-26 की जो ईयर है, जैसे हमने अभी बात करी 1/4/25 से 31 मार्च 26 तक का, जब टैक्स देना है तो असेसमेंट ईयर 26-27 में देंगे। और प्रीवियस ईयर था उसका, या फाइनेंशियल ईयर था 25-26। अभी शुरू में हमने बात करी थी, नया एक्ट आ गया। इसमें सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए, रेफरेंस के लिए आपको, कि अगले साल से ये जो डिफरेंस है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का, डिफरेंस नहीं रहेगा। अब नया कंसेप्ट नए एक्ट में आ गया, जिसको टैक्स ईयर कहते हैं। टैक्स ईयर मींस जो साल, जिस साल की इनकम है उसी साल में टैक्स होना है। ये अगले साल से शुरू होगा, तो इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26-27 को टैक्स ईयर भी 26-27 होगा। अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा अगले साल से। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें, प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में अगले साल में टैक्स हो रही है। तो दो बात है, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर अलग है, असेसमेंट ईयर अलग है। बट नए एक्ट के अंदर एक ही बात है, नो, अगर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले हमने समझा रिटर्न, कौन कौन पर्सन है जिनकी रिटर्न समझनी है, फिर कौन कौन से हेड है उनकी इनकम समझी। फिर हमने समझा कौन से साल की इनकम वो हमने टैक्स देना है। फिर आता है टैक्स होता कैसे। टैक्स के लिए मेन कंटेंट्स क्या देखा जाते हैं, जिसको टैक्स रिटर्न भरते हुए बड़ा ध्यान देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला है रेजिडेंशियल स्टेटस। आप रेजिडेंस क्या है, जो भी पर्सन था जिसको हमने अभी पर्सन देखा, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, या कंपनी है, या फॉर्म है, इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस पहले देखना जरूरी है। कि ये जो प्रीवियस ईयर में इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था, प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसमें दो तरह की कैटेगरीज है, रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है। इनकम टैक्स का रेजिडेंट का मतलब इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से समझना है, बाकी एक्ट के हिसाब से नहीं। फैमा में अलग लॉ है, अलग, अगर अगर लॉज में अलग अलग लॉ है, जिसको पढ़ने का तरीका और नॉन रेजिडेंट को समझने का तरीका अलग अलग है। इसमें हम, जो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट को कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं कि रेजिडेंट कैसा है। तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बताया हुआ है, उसके कितने दिन हिंदुस्तान में रहा, सुनते हैं आप लोग, 182 दिन हिंदुस्तान में रह गया,
तो कोई वो आपका इंडिया में रहा तो वो रेजिडेंट बन जाता है। तो रेजिडेंट की फर्दर दो क्लासिफिकेशन भी बनाई गई हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट की टैक्सेबिलिटी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की टैक्सेबिलिटी में फर्क है, और उसको वर्कआउट करने के लिए मेथड भी अलग है, नंबर ऑफ डेज वगैरह भी अलग अलग है। जब वो करेंगे तो हम समझ लेंगे। बेसिक आइडिया समझना है कि रेजिडेंट होता है, वो दो तरह के रेजिडेंट हो सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक होता है नॉन रेजिडेंट, जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है। मीन जो क्लासिक जो हमें रूल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर रेजिडेंट कैलकुल वर्कआउट करते हैं, जो नहीं फॉलो करता वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे इंडियन कंपनी है वो रेजिडेंट रहती है हमेशा, फर्म इंडियन है वो इंडियन फर्म भी रहती है। फॉरेन फर्म भी क्या और कंपनी भी क्या रेजिडेंट हो सकती है, उसके लिए अलग रूल्स हैं, लेकिन हम अभी इस महीने के लिए इतने काफी है कि नॉन रेजिडेंट है तो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट है। जो फॉरेनर्स है बाहर रहते हैं कभी कभी इंडिया आते हैं, उनकी इनकम इंडिया से हो रही है तो वो नॉन रेजिडेंट ऐसा समझते हैं। रेजिडेंट स्टेटस अलग अलग है, सेपरेटली पैरामीटर्स है डिटरमिन करने के, कैसे कैसे डिटरमिन करना है इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। पैरामीटर को डिटरमिन कर ईच पर्सन के लिए, मतलब इंडिविजुअल के लिए अलग है, एचयूएफ के लिए अलग है, फर्म के लिए अलग है, कंपनीज के लिए अलग है, उसको डिटरमिन कैसे करना है वो अलग अलग है। तो अब इनकम जो है टैक्स होती है रेजिडेंस स्टेटस के हिसाब से। तो टोटल ब्रॉडली हमने समझा था इनकम, पहले हेड समझे थे, अब टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम भी कितने तरह की कैटेगरीज बनाई गई, जो रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसको समझना चाहते हैं चाहिए कि उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। पहला है रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। जो इनकम हिंदुस्तान में रिसीव हुई या ये माना जाए हिंदुस्तान में मिली, तो उसको हम टैक्स रेजिडेंट के स्टेटस के हिसाब से मान टैक्सेबल इन इंडिया होती है। जैसे आपको पैसा सैलरी मिली, आपको इंडिया में मिल गई, जो आपकी प्रॉपर्टी है रेंट है वो आपको इंडिया में मिल गया, कैपिटल एसेट आपको बेची जब पैसा मिला वो इंडिया में मिल गया, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, जब आपके बिहाफ पे किसी ने ले लिया, तो डीम टू हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया होगी। इसमें दूसरा आता है अक्रूड और अराइज इन, और डीम टू अक्रू अराइज इन। अब इनकम एक जो रिसीव हो गई, एक रिसीव नहीं हुई बट आपको ड्यू हो गया, अक्रू हो गई। जैसे आप बैंक में एफडी रखी हुई है, आपने एफडीआर के ऊपर इंटरेस्ट है, आपको मिला नहीं ईयरली, लेकिन उसके ऊपर ड्यू होता जा रहा है, वो आपकी एफडी के अंदर जुड़ता जा रहा है, तो वो आपका अक्रूड एंड राइज होता जा रहा है। एफडीआर का इंटरेस्ट है, आपको मिल रहा है। जैसे सैलरी है, मान लो सैलरी आपको नहीं मिली, आपकी मिलती है 6 महीने बाद या 15 दिन बाद या 7 दिन बाद, मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में मिलती है, तो मार्च की सैलरी मार्च में अक्रू हो गई आपकी, उसकी टैक्सेबिलिटी उसी साल में हो जाएगी जिस साल में आपको ड्यू अक्रू हो गई। सैलरी रेंट है, जैसे किराया है, किराए पे मकान दिया हुआ है, किराया आपको अगले हो सकता है 10 मार्च 10 दिन बाद मिलता हो या 15 दिन बाद मिलता हो, तो लेकिन जिस महीने का है रेंट, उस महीने का वो अक्रू एंड राइज माना जाएगा, ये रेंट के बस हिसाब से। एक होता है अक्रूड एंड आउटसाइड इंडिया, जो रेंट इनकम अक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई। मान लीजिए कोई घर बाहर है, हिंदुस्तान से बाहर है किसी का, वो वहां से किराया आ रहा है, या उसका इन्वेस्टमेंट बाहर है, कोई एफडीआर बाहर है, या शेयर्स बाहर है, उस पर डिविडेंड आ रहा है, तो हिंदुस्तान से बाहर है, उसकी टैक्सेबिलिटी बाहर, उसको कहेंगे इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया। अब इन तीनों की टैक्सेबिलिटी रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्सेबिलिटी होती है। जो रेजिडेंट होता है उसको सारी इनकम टैक्स होती है, नॉन रेजिडेंट की वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई, जहाँ इंडिया में अक्रू हुई, उतनी ही टैक्स होती है। जहाँ बिजनेस जो रिलेटेड इंडिया में है उतना ही टैक्स होगा, बाकी इनकम उसकी टैक्सेबल नहीं होती है। तो हमने अभी तक क्या समझा, अभी तक हमने देखा कौन कौन से पर्सन है, कौन कौन से पर्सन इंडिया में टैक्स होंगे, 7 तरह के समझे। फिर हमने सोचा कौन कौन सी इनकम है, वो समझी कौन सी इनकम आती है। फिर किस साल में इनकम होएगी, उसकी टैक्सेबिलिटी किस साल में होएगी। और फिर हमने समझा कौन सी इनकम टैक्स होएगी जो रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से पढ़ेंगे हम। अब इनकम इतना समझने के बाद हम इनकम कंप्यूट करते हैं, हेड वाइज इनकम हमने कंप्यूट करनी है, क्योंकि हम रिटर्न जब फाइल करते हैं तो इनकम जो है हेड वाइज कंप्यूट करके उसके अंदर रिटर्न फाइल करते हैं। तो हमने अभी तक देखा था रिटर्न के हेड कौन कौन से हैं, वो इनकम के हेड हमने समझे थे। अब उसको एक एक करके उसको फर्दर डिस्कस करते करेंगे, और फिर उसमें देखेंगे कि इनकम कौन से वाली इनकम की बात कर रहे हैं। अब इनकम में भी दो तरह की इनकम होती है, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। अब ग्रॉस का मतलब क्या है और नेट इनकम का मतलब क्या है। जैसे बिजनेस होता है, बिजनेस में हम पैसा आता है सेल्स करके आ रहे हैं, सेल्स भी होती है, परचेज भी होती है, फिर आदमी को अगर किराया भी रेंट भी आता है, फिर इंटरेस्ट भी आता है। बिजनेस में एक सब तरह से हो सकता है।
जब ग्रॉस अमाउंट है मीन्स ग्रॉस रसीद टर्नओवर है, वो इनकम नहीं है, ग्रॉस इनकम नहीं है मेरी। और नेट इनकम मीन्स नेट इनकम पे टैक्स होने बिजनेस की जब बात करनी है। और इसी तरह हम बाकी कोई खर्चे जो अलाउबल हैं, जिन जिन हेड में अलाउबल है, उसको अगर निकाल देते हैं तो वो नेट इनकम की बात करनी है। तो ग्रॉस इनकम वर्सेस नेट इनकम, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है। जो अकाउंट्स बना रहे हैं आप, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ग्रॉस इनकम आती है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात भी करते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है आपने समझा होगा अभी पिछली क्लासेस में, को इनकम ग्रॉस भी होती है नेट भी होती है। तो इनकम नेट पे है टैक्स होता है, ग्रॉस पे टैक्स नहीं होता। फिर उसी को इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से दो पार्ट देखने में मिलेंगे आपको। जब रिटर्न बनने जाएंगे तो उसमें दो अलग अलग फिगर मिलेंगी। उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम जब हमने 5 हेड समझे थे, पांचों हेड की इनकम अब निकाल लेंगे हम, सबको उनका टोटल कर देंगे, तो उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। और उसमें से कुछ डिडक्शन अलाउ होती हैं चैप्टर 6 की, जो बोलते हैं हम LIC है, आपकी PPF है, ऐसी खर्चे जो आपको मेडिकल है या डोनेशंस हैं, इस तरह के जो डिडक्शंस हैं वो मिलती हैं, अगर कम कर देते हैं तो वो टैक्सेबल इनकम बन जाती है। मीन्स हेडवाइज इनकम को सबको पांचों को टोटल कर दिया तो वो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। उसमें से खर्चा निकाल दिया और डिडक्शन निकाल दी, तो उसके बाद वो टैक्सेबल इनकम होगी। जो टैक्स देना है वो टैक्सेबल इनकम पे देंगे। तो अभी तक ये भी हमने समझ लिया ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है, ग्रॉस इनकम क्या है, नेट इनकम क्या है, वो समझना है, समझ लिया हमने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। अब सारी इनकम पे टैक्स होता है ऐसा नहीं है, कुछ इनकम जो है एग्जाम्प्ट है, उन पे टैक्स नहीं होता है। तो उसकी एक लिस्ट है, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन है, जिसको अभी हम समझते हैं सेक्शन 10 बोला जाता है। और चैप्टर 3 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंदर लिस्ट है जिसके अंदर वो इनकम जो है एग्जाम्प्ट होती है। जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्प्ट इनकम में कई इनकम आती है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, वो एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट एग्जाम्प्ट की हुई है इसलिए क्योंकि वो इनकम तो है, बट टैक्सिंग राइट नहीं है, इसलिए एग्जाम्प्ट है। जहाँ कुछ बेनिफिट दिए हुए हैं, जैसे आपका कोई रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं उसको PF मिलता है, ग्रेजुटी मिलती है, लीव इन कैशमेंट होती है, वो उनकी कुछ एक्सटेंड तक एग्जाम्प्ट होती है। तो वो वाली एग्जाम्पशन यहाँ दी हुई है। तो इस तरह के लिस्ट है, जो एग्जाम्प्टेड इनकम की भी लिस्ट है, वो अगर आ रही है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगी। उसको हमने कॉलम भरना होता है रिटर्न में, ये ध्यान रखना है। जब रिटर्न बना रहे हैं तो उसमें दोनों तरह की इनकम भरनी होती है, एग्जाम्प्ट भी और टैक्सेबल भी। जो इनकम एग्जाम्प्ट नहीं है वो टैक्सेबल हो जाएगी और उसके ऊपर हम टैक्स देंगे। अब डिडक्शन की बात करी थी हमने, अब ये डिडक्शन एक टोटल डिडक्शन की बात करते हैं, ग्रॉस टोटल से टैक्सेबल इनकम की उसकी बात नहीं कर रहे। हम डिडक्शन कर रहे हैं हेड वाइज। जब हम हेड में इनकम बनाएंगे, सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स, उसमें से कुछ डिडक्शंस मिलती हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे आप सैलरी के लिए करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो आपको देखना है सैलरी की जब इनकम है तो उसको एम्प्लॉइज को जब कैलकुलेट करेंगे, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो उसको डिडक्शन मिलती है वो कम करनी है। अब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कहते हैं रेंटल इनकम, तो उसमें भी कोई डिडक्शन कुछ डिडक्शन मिलती है। जैसे कोई हाउस टैक्स देते हैं, उस प्रॉपर्टी जिसका रेंट आ रहा है अगर हाउस टैक्स दिया हुआ है तो वो डिडक्शन मिलती है। फिर 30% ऑफ जो रेंट आया, रेंट माइनस हाउस टैक्स, उसको भी एक डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह मिलती है। और मान लीजिए आपने घर रह लिया हुआ है और उस पर लोन लिया हुआ है, लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट है जो, उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हाउसिंग लोन के ऊपर, तो वो इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो ये 3 तरह की डिडक्शन आपको मिल जाती है। आप जैसे बिजनेस और प्रोफेशन की बात करते हैं, अभी तो आपने सब समझ ही लिया, इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं कि उसकी जो अकाउंटिंग करनी है, अकाउंट्स में आपने बिजनेस हेड भी हैं के अंदर क्या क्या आते हैं, इनकम हेड भी आते हैं, एक्सपेंस हेड भी आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो कैसे बनता है, एक तरफ सारी इनकम आती है, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन आता है। जो नेट आता है वो बिजनेस इनकम कहलाती है। और इसका मतलब बिजनेस ग्रॉस रसीट सेल्स पे नहीं, सेल्स के आगे खर्चे भी होंगे, परचेजेस भी होंगी, उन सबको लेस करने का डेप्रिसिएशन करने के बाद जो नेट आया उसको बिजनेस इनकम कहलाएगी। फिर आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हमने समझा था कि अगर घर बेचा आपने, या ज्वेलरी बेची है, प्लॉट बेचा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है, दुकान बेची है, उन सब के ऊपर कैपिटल गेन आता है कॉस्ट में से।
वो क्या उसमें से भी डिडक्शन मिलती है? यस, उसमें से भी कुछ डिडक्शन मिल सकती है। जैसे हमने घर बेच के घर नया ले लिया, तो उस पे ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है। जहाँ आपने कोई ज्वेलरी बेच दी, शेयर बेच दिए, उसके अगेंस्ट आपने कोई और चीज ले ली, जैसे नया घर ले लिया, तो उसके ऊपर भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। जहाँ एक होता है बॉन्ड्स का अंदर है, या कैपिटल गेन बॉन्ड्स बोलते हैं। अगर किसी ने बॉन्ड भी लिया, उसकी एक लिमिट है 50 लाख की, साल में मैक्सिमम 50 लाख रुपए ले सकते हैं। अगर किसी ने टैक्स बचाने के लिए 50 लाख ले रखे हैं बॉन्ड, तो जब कैपिटल गेन हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें अंदर वो बॉन्ड्स की कैपिटल गेन वाली डिडक्शन उसको मिल जाएगी। फिर हम आते हैं अदर सोर्स के, 5 हेड बताए थे हमने, पांचों हेड में रेजिडुअल क्लॉज में, इसमें भी जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन के अगेंस्ट जो भी आता है, उसके अगेंस्ट उसको डिडक्शन की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। जैसे सैलरी वाले को मिलती है, ऐसे ही फैमिली पेंशन वाले को भी डिडक्शन स्टैंडर्ड मिलती है। तो ये डिफरेंट टाइप की, थोड़ी ब्रीफ में आपको बताया है किस तरह की डिडक्शंस होती हैं, जिससे आप जब कैलकुलेट करें या रिटर्न फाइल करने लगे, तो ये हेड ऑफ इनकम पता लग जाए, और हेड ऑफ इनकम में से ये खर्चे होते हैं, ये इसको आप समझ लें। अब आते हैं, जब हमने बात करी थी ग्रॉस टोटल इनकम की और नेट इनकम की और टैक्सेबल इनकम की, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो डिडक्शन होती है। टोटल डिडक्शन किस तरह की होती है, इसका चैप्टर 6 से है। जो हमें ज्यादातर समझने में आता है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है, LIC है, PPF है, NSC है, एक्सेट्रा, 1.5 लाख तक की उसकी डिडक्शन मिल जाती है। बट ये ध्यान रखना, कौन सी ये मिलते हैं, सबको नहीं मिलती है अब ये डिडक्शन। जो ओल्ड रिजीम और नेट रिजीम वाले टैक्स का होता है, उसके हिसाब से वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो उसका भी ध्यान रखना है, सबको नहीं मिलती है। तो आपको देखना है किसने ऑप्शन ली हुई है, उसी को मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। फिर मेडिक्लेम की अगर पॉलिसी ले रखी है किसी ने, तो उसको मेडिक्लेम 25 और 50 हजार के हिसाब से जो प्रीमियम उसने दिया हुआ है मेडिक्लेम का, वो डिडक्शन उसको मिल जाती है। और अगर उसने कोई डोनेशन दे रखी है, डोनेशन कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे रखी है, या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे रखी है, या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे रखी है, तो उसमें 50% और 100% डायरेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। तो आप अगर उसके पास रसीद होनी चाहिए, और उसका रसीद के हिसाब से आप उसको डिडक्शन दे सकते हैं। तो अब हमने समझा हेड वाइज ही डिडक्शन मिलती है। जब टोटल हेड के सबका पांचों का हेड कर लिया, उसमें भी फर्दर डिडक्शन जनरल टोटल भी मिल सकती है, अगर डिफरेंट टाइप की मिल जाती है तो। अब जो जो इनकम वगैरह आ गई, हमने देखा एक पर्सन, उस पर्सन के हिसाब से इनकम, हेडवाइज इनकम, उसको टोटल कर लिया, डिडक्शन कर ली, फिर आ गया टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम बन गई, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट पे करना है? तो उसके लिए इनकम टैक्स में प्रावधान करा गया है कि नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है, वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस भी है। कुछ इनकम पे नॉर्मल है, कुछ पे स्पेशल रेट है, वो हम अभी समझ लेते हैं। नॉर्मल रेट नॉर्मल लगता है, कुछ आइटम पे स्पेशल रेट है। जैसे हमने हेड वाइज समझा था, अभी शुरू में मैंने बात करी थी ना, हेड इनकम के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से। अब पर्सन के हिसाब से इनकम टैक्स रेट भी है। जैसे नॉर्मल रेट है, फर्म के केस में हम कहते हैं, तो उसका फर्म का रेट ऑफ टैक्स 30% है। अब कंपनी के केस में कहते हैं, तो उसके चार तरह के स्लैब हैं। 15% है, 22% है, 25% है, और 30%। नॉर्मल रेट में 30% है। अगर उसकी टर्नओवर का बेस है, तो 25% हो जाता है। अगर कंपनी कोई ऑप्ट करती है स्पेशल रेट के लिए, तो रेट कम होके मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15 है, और अदर कंपनीज के लिए 22% है। अब टैक्स रेट जिनका कम हो जाता है, उनको कुछ एडवांटेज हैं, जो डिडक्शंस है वो नहीं मिलती हैं, वो ध्यान रखना चाहिए। सॉरी, फॉरेन कंपनी का अगर इंडिया में टैक्स करते हैं, तो उसका 40% टैक्स रेट है। तो ये हमने एक बताया, पर्सन के हिसाब से टैक्स रेट भी होता है। अब इंडिविजुअल के हिसाब से भी टैक्स रेट हैं, स्लैब्स हैं, ये स्लैब्स हैं एज के हिसाब से इंडिविजुअल के रेट्स हैं। जैसे इंडिविजुअल का टैक्स स्लैब है 2.5 लाख तक का, 2.5 से 3 लाख, 3 से 5, 5 से 10, 10 से ज्यादा, तो डिफरेंट रेट है। और रेट के अलावा रेट उसके हिसाब से एज फैक्टर भी कंसिडर करते हैं। वो एम्प्लॉइज जो जो इंडिविजुअल है, अगर वो 60 साल से कम की उम्र का है, 60 से 80 के बीच का है, या 80 साल से ऊपर का है, अगर इस तरह का रेट है, अगर उसकी एज है, तो एज के हिसाब से उसको टैक्स रेट लगते हैं अलग अलग स्लैब के हिसाब से, और उसको बेनिफिट मिलते हैं। और इसमें भी हमने बताया था पहले आपको, एक न्यू रिजीम है, एक ओल्ड रिजीम है।
ओल्ड रजीम में एक बेनिफिट है, आपको डिडक्शंस वगैरह मिलती रहती हैं, जैसे अभी अब चैप्टर 6 की बात करी थी, या और बेनिफिट मिल सकते हैं। अब न्यू रजीम का एक कंसेप्ट है कि आप न्यू रजीम में अगर जाते हैं तो आपको रेट ऑफ टैक्स और स्लैब्स कम है, और अलग रेट्स हैं, ये कम रेट के हैं। तो इसमें जब भी करते हैं बाय डिफॉल्ट, अब जब रिटर्न आप फाइल करेंगे, तो जब इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करते हैं बाय डिफॉल्ट वो न्यू रजीम देता है, ये वाला रजीम देता है। मतलब ये रेट ऑटोमेटिकली लगाने होते हैं। अगर आपको ये रेट नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि पुराने रेट ओल्ड रजीम में अगर जाना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन लेनी पड़ती है। उसके लिए एक फॉर्म साथ में भरना पड़ता है जब रिटर्न फाइल करेंगे। तो ध्यान रखना है, जब हमने रिटर्न फाइल करनी है, अगर ओल्ड रजीम में जाना है तो हमें फॉर्म जरूर भरना है। और जिनकी इनकम बिजनेस इनकम है, वो एक बार फॉर्म न्यू ओल्ड रजीम में रहेंगे या ओल्ड में एक ही टाइम रहेंगे, वो एग्जिट नहीं कर सकते। वंस इन लाइफ एग्जिट कर सकता है इंडिविजुअल, सारे लोग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ये हमारा न्यू रजीम ओल्ड रजीम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर ध्यान रखना है। जब हम रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका बात भी करें। और स्पेशल रेट में हमने एक बात करनी थी, पहले बताया था नॉर्मल रेट भी है, कुछ स्पेशल रेट भी है। तो स्पेशल रेट टैक्स पे भी है, जैसे कैपिटल गेन आप किसी ने अर्निंग है, तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। जब कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं तो इसके दो पार्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट अलग रेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अलग है, और अलग वर्किंग है। उसमें भी इंडेक्सिंग नॉन इंडेक्सिंग का इशू है। जैसे हमने 100 रुपए की चीज बेची, और उसकी अगर कॉस्ट 20 रुपए थी, तो 80 रुपए जो मेरा है कैपिटल गेन है, तो उसमें नॉर्मल टैक्स 12.5% लगेगा। और इंडेक्सिंग का इशू है कि इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जिस साल में हमने खरीदा और जिस साल में बेचा उसके बीच में इंडेक्सिंग कैसे होगी, उसको रेट नोटिफाई करती है गवर्नमेंट। इसको नोटिफाई लगता है, इंडेक्सिंग रेट बोलते हैं। जैसे 2001 में कोई चीज की थी, उसका 100 रुपए रेट माना जूम है, और आज मान लीजिए 350 रुपए रेट के हिसाब से, जो रेट नोटिफाइड है, उसके हिसाब से इंडेक्स कॉस्ट आ जाती है। तो हम जो भी हमारा कॉस्ट थी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको डिवाइडर लगाते हैं, जो करंट रेट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो बेस ईयर है जिस साल में परचेज किया है उसको डिवाइड करते हैं, तो उसका इंडेक्स कॉस्ट निकल आती है। तो इंडेक्स कॉस्ट के हिसाब से करके कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 20% और 12.5%, अगर जो कम है उसके लिए वो आप कैलकुलेट करके उतना टैक्स देना दे सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ रेजिडेंट के लिए है, इसको नॉन रेजिडेंट के लिए बेनिफिट नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो टैक्स है, उसके अलावा 4% आपका सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो सारे केसेस में लगता है, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, सभी को ये लगता है। इसके अलावा सरचार्ज एक होता है, जब इनकम है तो आपकी सरचार्ज भी लगेगा। पहला है इनकम टैक्स, फिर इनकम देखा, इनकम पर टैक्स देखा, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा, फिर एजुकेशन सेस लगेगा। ये सरचार्ज के रेट हैं, इनकम जिसके स्लैब है उसकी इनकम के हिसाब से सरचार्ज भी देना पड़ता है। मान लीजिए इनकम 50 लाख से ज्यादा है, या 50 से 1 करोड़ है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ है, 2 से 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ है, उसका स्लैब भी अलग है। दोनों सरचार्ज के रेट न्यू रजीम में, ओल्ड ओल्ड रजीम में अलग अलग रेट है। वो रेट समझनी है, ये चार्ट है आपके पास रह जाएगा, आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप रेडी रेक्टर के हिसाब से जब कैलकुलेट करें, ध्यान रखिए, अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उसका सरचार्ज बनेगा, सरचार्ज लगाना ना भूलें। अब टैक्स कैलकुलेट कर लिया हमने, इनकम देखी, इनकम के बाद हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, उसका टैक्स कैलकुलेट कर लिया इंक्लूडिंग सरचार्ज और आपका एजुकेशन सेस। अब ये जो अमाउंट आ गया इसको पे भी करना है हमने, रिटर्न फाइल करने से पहले भी और ड्यूरिंग द ईयर भी। तो कब हमें जमा कराना होता है, एडवांस टैक्स की तरह शेप में जमा कराना होता है। ये टैक्स जब जब आप अर्न करें साथ साथ जमा कराना होता है। जैसे पूरा साल था, हमने मार्च 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का पीरियड था, उसके अंदर जो टैक्स था प्रीवियस ईयर का, इनकम का जो असेसमेंट ईयर 26 था इसका, उसका टैक्स जमा कराना होता है एडवांस टैक्स की शेप में। वो 15% 15 जून को कराना होता है, 45% तक टोटल सितंबर तक कराना होता है, 75% उसका दिसंबर 15 तक कराना होता है, और 100% 15 मार्च 2026 तक कराना था। अगर वो हमने नहीं कराया हुआ, वो सबको नहीं कराना होता, मतलब किनको कराना है, जिनकी इनकम टैक्स जो है 10,000 से ज्यादा बन रहा है एस्टिमेटेड, तो उसको जमा कराना होता है। और सीनियर सिटीजन है तो उनको नहीं कराना होता, उनको रिटर्न के टाइम कराना है,
प्रोवाइडेड उनकी कोई बिजनेस इनकम ना हो। तो ये टैक्स रेट ड्यूरिंग द ईयर जमा कराने होते हैं, टैक्स ये ध्यान रखना होता है। नहीं अगर कराया तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट देना, कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए टैक्स पूरा नहीं जमा हो पाया एडवांस टैक्स में, तो क्या करें? तो जो एडवांस टैक्स में जमा नहीं हो पाया उसको हम करते हैं, उसको सेल्फ असेसमेंट के टाइम पे जब रिटर्न फाइल करते हैं तो टैक्स जमा करा सकते हैं, उस टाइम करा देते हैं। अगर ये टैक्स जमा नहीं हुआ, टाइमली जमा नहीं करा पाए, मीन्स रिटर्न के टाइम एडवांस टैक्स में नहीं जमा हुआ, तो इसके डिले करने के लिए इंटरेस्ट पे करना होता है, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साथ में करना होती है। अब आते हैं कि इनकम की बात हो गई, टैक्स की बात हो गई, टैक्स डिपॉजिट भी हो गया, तो अब रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल किसको करनी है पहले? और इसका रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न का मतलब है कि आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। जो रिटर्न फाइल कर रहा है वो अपनी इनकम को असेसमेंट करके देख रहा है, असिस्ट करके देख रहा है उसकी इनकम कितनी है, टैक्स कितना है, ब्याज कितना है, वो पूरा जमा हो गया, क्या सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। सबकी सेल्फ असेस करके रिटर्न आपने फाइल करनी होती है, और रिटर्न डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो आपको नोटिस देता है कि हम वेरीफाई करेंगे। तो सेल्फ असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट। 98% रिटर्न हमारी सेल्फ असेसमेंट में फाइल होती है। अब आता है हु नीड टू फाइल। रिटर्न फाइल किसको करनी है? जिसकी इनकम है और वो टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है। मीन जो अभी अभी स्लैब देखे थे हमने इंडिविजुअल के केस में, 2.5 लाख का जो लिमिट है, तो अगर उससे ज्यादा उसकी इनकम है, जहाँ सीनियर सिटीजन का 3 लाख से ऊपर है, सुपर सीनियर है तो 5 लाख से ऊपर है, तो उनकी रिटर्न उसको फाइल करनी जरूरी है। अब कंपनी के केस में कोई लिमिट नहीं है, फर्म के केस में कोई फ्रीडम लिमिट नहीं है, तो उन सबको रिटर्न ऑटोमेटिकली सबको फाइल करनी जरूरी है। ये दे उन सबको रिटर्न फाइल करनी होती है। फाइल करने की एक ड्यू डेट्स है कि आपको रिटर्न फाइल कब करना है। तो इसके अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है, उसके हिसाब से रिटर्न। अब इस साल में रिटर्न हमारे 4 पॉइंट डेट्स हैं। एक है आपको जुलाई में फाइल होनी है, एक अगस्त में, एक सितंबर में, और एक नवंबर में, इस अक्टूबर में और नवंबर में। ये हैं 4 डेट्स हैं। जिनका बिजनेस इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है, वो जुलाई में जाएंगी। जिनकी बिजनेस इनकम है और ऑडिट नहीं होना, उनकी अगस्त में जाएंगी। बाकियों की ऑडिटेबल अक्टूबर में जाएंगी। जिनके ट्रांसफर प्राइसिंग की रिटर्न जाती है वो नवंबर में जाएंगी। इनका पैन नंबर इंपॉर्टेंट है। आपको रिटर्न फाइल करने के लिए पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना पैन के आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। पैन चाहिए। आधार के बेस पे भी रिटर्न फाइल हो जाती है, बट ज्यादातर पैन के बेस पे। जितने पैन है वो आधार से लिंक होने चाहिए। अगर आधार से लिंक नहीं है तो वो भी इनवैलिड पैन हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो जितने भी पैन है उसका ध्यान रखना होता है कि वो आधार के साथ लिंक भी हो जाए। अब हाउ टू फिल द इंफॉर्मेशन देन। अब हमें सारी इंफॉर्मेशन जो बनानी है उसको रिटर्न को ध्यान से पढ़ना है, कैलकुलेट करना है गया था, उसको हम उसमें फिल करेंगे। अब ये रिटर्न्स के फॉर्म्स हैं, 7 तरह के रिटर्न फॉर्म है जो मेरे को नोटिफाइड है। 7 रिटर्न फॉर्म है। फॉर्म ITR 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7। जो कंपनी के केस है उनकी 6 नंबर में जाती है। जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो कंपनी है उसकी 7 में जाती है। जो फॉर्म्स है LLP है, जो AOP है, वो फॉर्म 5 पे जाती है। अब ये 3 तो स्पेशल कैटेगरी है। बाकी बची 4 रिटर्न, इनको ध्यान से पढ़ना है। जो बिल्कुल सिंपल रिटर्न है वो सहज ITR 1 है। जिसकी इनकम बहुत सिंपल है, उसकी बिजनेस इनकम नहीं है, और कैपिटल गेन भी कम है, और एग्रीकल्चर है पर 5,000 से कम है। और फॉर्म नंबर 2 जाता है जो 1 में नहीं है, इंडिविजुअल और HUF, उनका और इनकम नहीं है इसकी बिजनेस की, तो वो 2 में जाता है। और जो इंडिविजुअल है है उसके बिजनेस इनकम 3 में जाता है, और बाकियों का 4 बचा सुगम। तो ये रिटर्न फॉर्म किसका है ये भी कैटेगरी समझना जरूरी है। फॉर्म ठीक होना भी जरूरी है। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म यूज होना है ये भी पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली चूज कर लेता है, बट आपकी नॉलेज के लिए जरूर देखना चाहिए ये कौन सा फॉर्म हमने कौन से रिटर्न के लिए भरना है, कौन सा पर्सन है पहले, और उसी कौन से हेड ऑफ इनकम से आ रही है, उसको कंसिडर करने के बाद फॉर्म की सिलेक्शन होती है। अब ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से। इसकी यूटिलिटी आती है, ये एक्सेल फॉर्म में भी होती है, और दूसरे फॉर्म में भी होती है। तो आप जब रिटर्न बनाते हैं तो आप 2-3 चीजों का और ध्यान रखना जरूरी है। उसमें से है फॉर्म नंबर 26 है। ये जब पोर्टल रिटर्न साइट पे जाते हैं, पोर्टल पे SSC के जिसका भी ये रजिस्टर होता है, वो आप पोर्टल से 26 निकाल सकते हैं। उसमें कंप्लीट डिटेल होती है, इनकम कितनी है, TDS कितनी कटा हुआ है, उसका और कोई और वो उसका एडवांस टैक्स कितना है, वो सारी डिटेल उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। एक TIS होता है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी होती है, उसकी पूरे साल की ट्रांजेक्शन होती हैं। उस ट्रांजेक्शन को जरूर देखना चाहिए
जिससे आपको आइडिया लगता है उसने क्या क्या किया, उसकी कौन कौन से सोर्स से इनकम है। उस इनकम को हमने उसमें इंकॉर्पोरेट करना होता है। और एक एआईएस होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसके बेसिस पे आप प्री फिल रिटर्न की बात भी करती है सरकार, कि ये इंफॉर्मेशन के हिसाब बेसिस पे वो रीफिल कर दे, प्री फिल करके रिटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये सारे कागज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो रिटर्न भरते हुए ये ध्यान रखना है, इनको जरूर वेरीफाई करना चाहिए कि टैक्स इन्फॉर्म जो आपका टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन है उसमें इनकम होती है जो आपको क्लाइंट देता है, जहाँ ससी ने इंफॉर्मेशन दी है उसको आप रिकनसाइल करें कि इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि मैच नहीं करेगा तो उसके हिसाब से आपको फिर नहीं तो बाद में नोटिस आ सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन जो इनके अंदर है उसी के बेसिस पे आप अपनी बनाई हुई रिटर्न्स को री वेरीफाई, रिकैलकुलेट करना चाहिए। अब आता है रिटर्न अब बना ली तो उसको साइन कौन करेगा। तो साइन करना है रिटर्न को, जिसका रिटर्न है वही साइन करेगा। जैसे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल करेगा, जो कंपनी है तो उसका डायरेक्टर एमडी करेगा, फॉरम है तो उसका पार्टनर करेगा। तो और इस तरह जो भी एचयूएफ है तो उसका कर्ता करेगा। इस तरह जिसकी रिटर्न है वही रिटर्न साइन करेगा। अब रिटर्न साइन कैसे होगी? आज की डेट में जो ऑनलाइन फाइल होती है तो रिटर्न फाइल भी साइन होनी होती है। हाउ टू साइन इट, डिजिटल सिग्नेचर आते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के साथ रिटर्न फाइल हो सकती है। और दूसरा तरीका होता है आपका, वेरीफाई कर सकते हैं आप, ओटीपी आता है आपके पास, अगर पैन है आधार से लिंक्ड है तो ओटीपी के थ्रू भी आप वेरीफाई का डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाती है। लेकिन जिनके ऑडिटेबल अकाउंट्स है उनकी रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं तो वो रिटर्न अपनी साइन जो होनी है वो साइन सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही फाइल होती है। ये ध्यान रखना है। अब रिटर्न फाइल कहाँ करनी है, ये भी आता है बात। रिटर्न आप फाइल करेंगे आप पोर्टल के ऊपर, जब एसएससी का पोर्टल है उसका जो लॉगिन करेंगे तो उसके ऊपर रिटर्न फॉर्म का एक साइन आता है। उस रिटर्न के ऊपर वहां उसको रिटर्न को अपलोड करना होता है। आप करेंगे तो डिले हो जाए तो रिटर्न का क्या करेंगे? डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट लग सकता है, फीस होती है, और पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन भी होता है। ये भी ध्यान रखना है, और ध्यान इसलिए रिटर्न बड़े टाइम से फाइल करें। रिटर्न कितने तरह की होती है? इसमें कई तरह की रिटर्न होती है। एक वॉलंटरी रिटर्न होती है, मीन्स जो आप टाइम से अपनी मर्जी से टाइम से फाइल, जो ड्यू डेट है तब फाइल करते हैं उसको। अब रिटर्न वॉलंटरी करें या डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तब फाइल करें। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल रिटर्न, जब ड्यू डेट से पहले आप फाइल कर देते हैं तो ओरिजिनल कहलाती है। अगर मान लीजिए वो रिटर्न फाइल करी लेकिन आपने देखा उसमें कोई गलती रह गई, ओमिशन रह गई, तो उसके बाद जब रिटर्न फाइल उसको ठीक करते हैं तो उसको रिवाइज रिटर्न कहते हैं। जो समय के बाद फाइल करी लेकिन ड्यू डेट से पहले करी वो बिलेटेड रिटर्न कहलाती है। और आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड, मीन्स आपको जो पीरियड है उसमें फाइल नहीं कर पाए और उसके बाद लेट फाइल करना चाहते हैं तो वो अपडेटेड रिटर्न कहलाती है। ये सारी तरह की इंफॉर्मेशन है जो रिटर्न से रिलेटेड मुझे लगा आपको ब्रीफ में बताया मैंने। ये मुझे टाइम जो अलॉट किया था कोशिश की है मैंने उसमें समय कंप्लीट कर पाऊँ, कि एटलीस्ट आपके पास 10 मिनट बचे जिससे आप अपने कोई क्वेरीज हो तो क्वेरी रेज कर सकते हैं। और मेरे साथ जो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की ऐसी फोरम पे। और नहीं कर पाया तो क्वेश्चंस बाद में भी आप भेज सकते हैं, हम उसे बाद में भी एड्रेस कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट के थ्रू करें वो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पेशेंटली मेरे को सुना। पूरा कोशिश की है आपको सही से इंफॉर्मेशन मिल पाए। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक जी आप क्वेश्चन ले सकते हैं। थैंक यू सर, से कोई क्वेश्चन आप प्लीज पूछिए। यस शीतल, यू कैन आस्क। सर मुझे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पूछना था। सर डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चेंज होता है या सेम एज इट इज ही रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा शीतल जी। इसमें है कि डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन हमें मिलता है असेट्स के ऊपर। जो असेट्स हैं हमारी बिजनेस में असेट्स यूज हो रही हैं जिसकी ऑनरशिप आपके पास है, और उसका डेप्रिसिएशन उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से डब्ल्यूडीवी के हिसाब से मिलता है। मीन ली पहले साल मान लीजिए 1,000 रुपए की चीज ली हमने, ठीक है, असेट खरीदी, उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अज्यूमिंग 15% है, ठीक है। तो 15% में 100 में से 15% आपको पहले साल में मिल गया, 85% पे अगले साल 85 पे 15% मिलेगा। तो मीन्स कॉस्ट उसकी कम होती जाएगी, डब्ल्यूडीवी कम होती जाएगी और डेप्रिसिएशन उसी डब्ल्यूडीवी पे लगेगा। तो मीन्स हर साल रेट तो ठीक रहेगा
वैल्यू वाइज आपका कम होता रहेगा, रेट सेम रहेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वही है, आपकी वैल्यू उसकी कम होती जाएगी और डिमिनिशिंग होती जाएगी। ठीक है शीतल जी, और कुछ क्लियर है? और कोई कुछ पूछना चाहेगा? सर इसी में एक और क्वेश्चन था सर, जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स एसेट्स पे ही लगता है, जितनी भी हमारी फिक्स सारी एसेट्स होती है उसी पर लगता है ना? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह की एसेट होती हैं, फिक्स एसेट्स और नॉर्मल एसेट्स। फिक्स एसेट्स तो आप अकाउंटिंग में सीखा ही होगा, फिक्स एसेट्स में क्या क्या होता है। फिक्स एसेट्स में हमारे फर्नीचर्स आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी होती है जो यूज करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है, आपकी बिल्डिंग हो सकती है। ये सारी चीजें आपकी जो है फिक्स एसेट्स हैं, वो बिजनेस के लिए यूज होती हैं। जो फिक्स एसेट्स के अलावा सेट होती है बैलेंस शीट में, अगर आपने देखा हो, इन सब फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन मिलता है और रेट अलग अलग है। ठीक है, नोटिफाइड रेट है। लेकिन कुछ एसेट जो अलग हैं, जैसे सन्ड्री डेटर्स हैं, आपके पैसे रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है, बैंक विद बैलेंस है, एडवांस टू कस्टमर है, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, ये एसेट्स हैं। बट ये फिक्स एसेट्स नहीं है, इन पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है शीतल, क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। हाँ। यस सर, कोई क्लियर। और किसी का क्वेश्चन? आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट, अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए ताकि रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं तो चलो सकें एज स्क्रीन। तो थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस। प्लीज अपना नाम और अपने फोन नंबर से लास्ट फिफ्टी डिजिट लिख के चैट बॉक्स में डाल दें। और आगे इस क्लास के सुबह नमाज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर बाबा सिंह प्रोटीन है। नमस्कार, नमस्कार बलदेव जी। नमस्कार। नमस्कार जी। गुड इवनिंग एवरीवन। बलदेव जी, आपने अब इतना एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपने प्रेजेंटेशन से और एक एक टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए प्रेजेंट किया। रिमार्केबल। बहुत ही वास्ट टॉपिक था, और लेकिन हर एक चीज को आपने एक एक थोड़ा थोड़ा उसको कवर करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, और उसके जो डेटा है वो सब देते हुए आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया। इनकम क्या है, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट क्या है, और कितने वो हैं, हु पेज, हु ऑल पेज, 7 कैटेगरीज बताए आपने, बेसिस ऑफ इनकम बताया, आईटीआर के बारे में बताया। और इतनी अच्छी तरह से एकदम फ्लो में ये चलता गया कि लग रहा था कि हम बस नोट डाउन, मैं तो वाकई में नोट डाउन कर रही थी, कहीं कहीं मिस हो जाता था, बट आई कुड अंडरस्टैंड। दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर इनपुट्स। थैंक यू आपका, मुझे आप बुलाते हैं, मुझे बच्चों से बहुत अच्छा लगता है, बच्चों से बात करके। बच्चों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी संस्था ने काम इनिशिएट लिया है, ये बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। तो हमारा तो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से जो कर पाए। बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो देयर वर सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पूछ सकते थे, इलैबोरेट कर सकते थे उस चीज को। कोई नहीं, आप अपने क्वेश्चंस को बाद में भी अभिषेक बाद को। में भी भेज सकते हैं, आई विल ट्राई, मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसमें कोई नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अभिषेक। ओके। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर समझ। ओके, जस्ट द नेक्स्ट क्लास which is on 28th, that is Tuesday. टॉपिक हमारा है बेसिक एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, और इनको कंडक्ट करेंगे सीए मिस्टर संदीप गुप्ता। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड द क्लास। थैंक यू एवरीवन। अभिषेक। थैंक यू मैम। और लास्ट में मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। जैसा कि कल आपको ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स के लिए है भेजा गया था कि आपको वीडियो बना के भेजनी है। तो इसकी जो डेट है वो कल की रात को 8 बजे तक है। आप प्लीज अपनी वीडियो सब तक भेज दीजिएगा। और जैसा कि वीडियो में आपको अपना नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको एचआरएस बारे, सोसाइटी के बारे में कहाँ से पता चला, और आपकी फीडबैक क्या है, क्लासेस के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, और कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो उसके बारे में जरूर अपना वीडियो बनाएं 1 मिनट का।
और इसके बाद कल जो है आपकी वो लास्ट क्लास है, और जैसा कि 29 को हम टेस्ट लेने वाले हैं सभी का, जितना अभी तक पढ़ा है आपने और जितनी क्लासेस ली हैं वो प्लीज आके अगर आप नोट्स बनाए तो रिवाइज कर लें। अगर कुछ मिस हो गया है तो उसे आप यूट्यूब पे जाके दे सकते हैं, जबकि सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, मिल जाएंगी। तो अपने टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए। और आगे जो भी अच्छी वीडियो बनाएगा उसे हम ऑब्वियसली, और जो अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करेगा उसे हम प्राइज भी देंगे, तो उसका भी हम ध्यान रखने वाले हैं। तो एक तो आपको पहला वीडियो बनाना है कल रात के 8 बजे से पहले आपको भेजना है, और दूसरा आपको टेस्ट की तैयारी करनी है जो कि 29 को होगा, और 30th को हम सारी अनाउंसमेंट करेंगे और सभी से हम उस दिन को पूरे सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो दैट्स हाउ योर सेशन ये फीचर विल बी। तो आप प्लीज इसका ध्यान रखिए, और इसी साथ में वो कैंसिल मार्च में लगा रही है वो चीज लगा रही है। Good evening, everyone. Uh, Good evening, dear friends. I am Radha Arya on behalf of Saksham Rozgar Society. Feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to CA Baldev Raj sir for taking a wonderful session. We look forward to more such classes. A big thank you to all of you, dear students, for your active participation and enthusiasm. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati, Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, thanks to Ms. Shobha Bhasin ma'am for having taken so much interest in training session. Wishing you all a very good night and thank you. It's over to you. Thank you, everyone. तो थैंक यू राधा फॉर थैंक्स। और जैसा कि इस वीडियो की का भी जो रिकॉर्डिंग है आपको सारी यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो प्लीज आप जाके देखिए और अपनी बाकी आने वाली क्लासेस तैयारी कीजिए। और अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो प्लीज अपने जाने वाले लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा लोग सब पहुंच सकें। तो इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड थैंक यू सर फॉर वॉचिंग सच अ वंडरफुल Good night, sir. Good night. सेशन।